object, so a junction object is uh, an object that like refers, or that is a many to many relationship object. Okay, now why do we need a junction object when we already have a master detail and a lookup, right? Why do we need that? The basic need for a junction object is that we need a junction object so that, if there are, let's say there are two objects which are far apart from each other, okay, and you want to have key references from two. So basically there are two tables, objects or tables, one and the same thing. So there's one object, let's say in this real estate example of ours, let me share my screen. Can you see my screen? Is my screen visible? Yes, 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 yes. yes. Okay, so we start with this. So let's say if someone is interested in buying a product, they're gonna be they're gonna see that products hoarding or advertisement or something like that. Okay, they're gonna basically give the call, or they're going to inquire online or whatever. So once that happens, a lead is generated in the system. Along with a lead, a contact is generated, contact for that customer. So these are two objects, lead and a contact. Okay. Once that contact is generated, an offer is given to the customer that, okay, offer or a quotation. Okay. Whenever we go to buy a car, we ask them for a quote, right? We ask them, okay, just tell me how much is this going to cost me? Can you give me a quote? Okay, that's how it works, right? We all of kind of somewhere down the line have bought cars for ourselves or our friends or something like that, and we know this, right? And then once we and even if we've not bought cars, if we've like if there are ladies who've bought jewelry, they go to a jewelry store and then they say that how much is this going to cost me? Can you like give me something in written so that I have a fair idea? So everywhere we ask for an offer, we ask for a quote, and then we basically bargain, right? We basically ask for a discount. Okay, and then once the offer is once we have the offer, after that, these objects come into the picture, which are property, and then project, property, tower, floor, and then finally once the guy says that, okay, I'm happy with this particular property, just give me a booking for this one. Okay, so you basically book a property for that guy. Okay, and a booking is created in the system. Okay, so booking is created as in the property is sold out, and now you once you sell out the property, you obviously keep a track of something, right? You obviously keep a track of that particular property, the details of the customer and everything, right? So that is where this booking object comes into the picture, wherein you create a booking. Okay, now, so I've not added a few more objects here in between. Let me add them. So lead goes below here. Okay, and so like this. Okay. All right. Now you can see that contact object and booking object are far apart here, right? Three objects apart. In fact, there might be four or five objects apart. Okay. So what you want here is that instead of like, you having to see values, field values I'm talking about. So let's say from booking, you want to see which property has this customer booked on which, what is the booking number. Okay, and then you want to see what is the name of the customer, what's the contact number of the customer, what's the email address, what's the PAN number, and all those details. You want to know all of these details here, right? So what you basically want is you want some of the field values or some of the data points from this object and some of the data points from this object. Okay, so what are you doing here? You are basically creating a bridge between this object and this object. Okay, you're creating a bridge, or in other terms, you're bridging the gap
so that you have relevant information present within one single object record. Okay, and here comes another object which is applicant. So this applicant object is like a junction. It keeps a track of this object, that is, it gives you certain details, not every single detail. So this object record will not give you address of the customer. Okay, but it will give you phone number, email address, name of the customer. Similarly, here it will give you which property has this customer booked, what's the booking number. So these very few details, but details that matter, or details that actually by just looking at the table once, you can kind of understand visually that what exactly is happening here in the system. Okay, so in order to bridge a gap, between two objects, or create a bridge, or create a basically create a relationship between two objects which are far apart, we create a junction object. Okay, now in order to create a junction object relationship, for creating a master detail relationship and a lookup relationship, what did we create in the system? आपको आंसर करना है इसका. Junction object. नहीं यार. So when we created a lookup relationship and a master detail relationship yesterday, what did we actually create in the system? जल्दी बोलो. Relationship. उसको entity का नाम क्या होता है? कहाँ जाके बनाई थी कल हमने? जल्दी बताओ, आज बहुत सारा पढ़ना है. Fields and relationship में. Fields बनाई थी हमने. तो for creating a master detail and a lookup, we had to create a field. But for junction object, we will not create a field. Junction object is an object in itself. So what are we creating here? Object. Object. Correct. Understanding clear है? तो बताओ. नहीं है, मैं repeat कर सकता हूँ. ठीक, अब clear है. क्या? Clear है? Clear है, clear. Everyone? यार आज 4 ही लोगों ने ज्वाइन किया है. Yes. Who's not here? पता नहीं. Anyways. इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सर जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होगा ये अपने जैसे ऑब्जेक्ट में विजिबल रहेगा, वो सर विजिबल नहीं रखते, वो तो पीछे मतलब बैक एंड टाइप डिपेंडेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ. दोबारा. विशाल फिर से बोलना. नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है. नहीं बोलो बोलो बोलो. सर मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे सर वो तो जो आपने जो कल बताया था वो तो सर एक तरीके से सर बैक एंड डिपेंडेंसी टाइप हो गया ना, कि जो अपने को विजिबल नहीं है, मतलब यूजर को विजिबल नहीं है वो. हाँ, आप सही कह रहे हो. आप सही कह रहे हो. आप सही कह रहे हो. आप क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे बेसिकली, कि जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी का एक रिकॉर्ड ओपन किया, अब मेरे को जो इसका लुकअप देखना है तो मेरे को इसको टावर पे जाना पड़ेगा, टावर का रिकॉर्ड खोल के फिर देखना पड़ेगा. आप यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ सर. लेकिन with the junction object you don't actually have to do that. What happens with the junction object is, एक सिस्टम में कॉन्टैक्ट बना हुआ है, एक सिस्टम में बुकिंग बनी हुई है. ठीक है, एक कॉन्टैक्ट बना हुआ है और एक बुकिंग बनी हुई है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ डिटेल्स जो मुझे चाहिए, वो डिटेल्स मेरे को बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जा रही है. ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं. यस. ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस. कल एक छोटी सी चीज रह गई थी, लेट्स टच ऑन दैट. इट्स रियली वेरी छोटी. लेट्स जस्ट टच बेस ऑन दैट वेरी क्विकली. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना जैसे ये कुछ फील्ड्स दिख रही है. अब जैसे ये वाली जो फील्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ फिल करना. ये वाली रहने देते हैं, कोई दूसरी फील्ड पकड़ते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ना जो ग्रॉस सुपर एरिया वाली जो फील्ड है वो मैंडेटरी नहीं है. देख रहे हो आप?
अब इसको भरो चाहे ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिक सेल प्राइस है, ये नहीं है, ठीक है। तो आपको ना इसको रिक्वायर्ड करना है, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। बता देता हूँ कौन कौन से। इसके क्या अलग अलग तरीके होते हैं। जब भी मैं एक नया फील्ड बना रहा होता हूँ, ठीक है, जब भी मैं एक नया फील्ड बना रहा होता हूँ, से हम क्रिएटिंग चेक बॉक्स, वो नेक्स्ट, यहाँ पर से हम क्रिएटिंग करेंसी इज फाइन, नेक्स्ट। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। चेकबॉक्स में वो ऑप्शन क्यों नहीं आया, बिकॉज चेकबॉक्स इज अ बुलियन, ट्रू या फॉल्स ही रहेगा, तो उसमें कहाँ से वो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आएगा। सो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। नाउ ये करेंसी वाला फील्ड है, इसमें यहाँ पर एक रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हो ना, तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड, इट विल बी रियली व्हाट रियली इम्पोर्टेंट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर यू टू बेसिकली फिल इन दिस इंफॉर्मेशन, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये हो गया एक। कल हमने पेज लेआउट देखे थे, ठीक है। पेज लेआउट के ऊपर, तो पेज लेआउट के ऊपर ये मेरी ग्रॉस ऊपर एरिया वाली फील्ड, ठीक है, कहाँ पर है ये मेरी ग्रॉस ऊपर एरिया वाली फील्ड, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे, ये मेरी ये जो ये आइकॉन दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ से इसे रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, और रीड ओनली भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। अगर मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ इसे यहाँ से, तो व्हाट्स गोना हैपन इज द नेक्स्ट टाइम अराउंड, if I go on to this record and I click on this pencil and I remove this super area and I try to save this, it will say complete this field. ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो मैं रिक्वायर्ड कर सकता हूँ अलग अलग जगह से, आपको पता चल गई किस किस जगह से, ठीक है। ठीक है, अब हम जल्दी से कुछ चीजें सीखेंगे, और वो सीखने के लिए किसी एक को अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट पे जो भी बढ़िया से जिसने बना रखा हो ना सब कुछ, वो कर दो जरा जल्दी में शेयर। स्क्रीन से अनेबल कर दीजिएगा। कर दिया। तो स्क्रीन विजिबल है? Yes, it is. Okay, go to properties. Yeah. Have you not created any property as of now? नो नो, ओके। ऐसा क्यों? चलो बनाओ। चलो बनाओ यस प्राइस बनाओ बनाओ, कुछ भी डाल रिकॉर्ड दो, बनाओ ना। डिटेल्स में कुछ भी डालो, कुछ फिक्स रिकॉर्ड डालने हैं मतलब। अरे डालो वैल्यू ना, जो मन करे वो डालो। 5,000 डाल दो, हाँ डाल दो। सुपर डाल दो 1,000। एक प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लो, प्रॉपर्टी टाइप ने बनाया ही नहीं होगा, प्लस पे क्लिक करो। ठीक है, नेम इट एनीथिंग दैट यू वांट टू। प्रॉपर्टी टाइप के लिए आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, चलो दे दो कुछ भी, 2 BHK लिख दो भाई। लेबल में भी सेम ही लिख दो, ठीक है। टाइप टाइप वाली जो पिकलिस्ट थी ना, वो पिकलिस्ट मैंने दे नहीं पाया आपको, आपने बहुत अच्छा किया, ये ABCD लिखा हुआ है। चलो ए कर दो सिलेक्ट, सेव कर दो इसे।
ठीक है, अभी टावर सिलेक्ट करो। टावर होगा नहीं है ना, कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो, मत क्रिएट करो, बाद में करना। स्क्रॉल करो नीचे, प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दो जो भी मन करे आपका। ठीक है, फ्लोर भी रहने दो, अब करो सेव इसे। ठीक है, अभी देखो, अभी ये रिकॉर्ड बन गया आपका। ठीक है, यस अब सारे लोग जितने भी हैं अभी सेशन में, सारे लोग ना ऐसे 5-5 6-6 रिकॉर्ड बना के आएंगे कल। ठीक है, खैर अभी फिलहाल बात करते हैं आगे की। तो हम बात करने वाले हैं आज, और हम सीखने वाले हैं आज फॉर्मूला फील्ड, ठीक है, और रोल अप समरी फील्ड, इफ टाइम परमिट्स दैट इज। चलिए, फॉर्मूला फील्ड क्या होता है? आपके पास में यहाँ पर दो वैल्यूज हैं जो कि प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग फील्ड्स में, विच आर बेसिक सेल प्राइस एंड ग्रॉस सुपर एरिया। यस ठीक है, अब आप चाहोगे कि सिस्टम में इसके अलावा, मतलब ये जो प्रेजेंट है ये तो ठीक है, आप चाहोगे कि सिस्टम में ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर मेरे को वैल्यू भी कैलकुलेट होके मिल जाए कि भाई ये कितने का है, मेरे को कितने की प्रॉपर्टी पड़ेगी, राइट? यस तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, उसके लिए हमें सेटअप ओपन करना पड़ेगा। ओपन करिए सेटअप। ओपन तो था, मैंने उसमें ऑब्जेक्ट खोला हुआ था दूसरा। कोई बात नहीं, चलो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे ओपन करो वो वाला ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट था वो? प्रॉपर्टी। आ गया। ठीक है, अब देखो, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे आऊंगा मैं, बिल्कुल सही किया आपने। अब आप न्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो थर्ड ऑप्शन है फॉर्मूला, तो अब हम बनाएंगे फॉर्मूला फील्ड। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। ऑलराइट, नाउ गिव दिस अ लेबल एज टोटल SC कर दो, SC सेल्स कंसिडरेशन, SC। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, फील्ड नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप आ रहा है ना, ये पहले यहाँ पे नहीं आता था, अभी नए वर्जन के बाद आया है ये। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो नीचे। अब भाई जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है वैल्यू अमाउंट, तो वो हम कौन सा रिटर्न टाइप सिलेक्ट करेंगे? नंबर नंबर, बहुत बढ़िया। और कोई? करेंसी ले सकते, करेंसी। करेंसी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट के लिए। नाउ एवरी सिंगल वन, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यूज में। व्हाट आर फॉर्मूला रिटर्न टाइप्स? ठीक है, so what are formula return types? Formula return types are basically the types of data, or the data types in which we want our formula to return a value. So essentially a formula return type can be, let's say, a checkbox, or if you are calculating financial values, it can be a currency. If you are calculating date values, it can be a date or a date time. If you're calculating numerical values, it can be a number. If you're calculating percentage, it can be percent, or otherwise we can have text and time as well as the formula return types. ठीक है, ठीक है, तो हमने करेंसी सिलेक्ट किया, नीचे हमें डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन आ गया कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, हमें 2 रखने हैं। ठीक है, हम वी आर गुड विद दैट टू। क्लिक ऑन नेक्स्ट प्लीज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते ही हम आ जाते हैं फॉर्मूला एडिटर में। ये हमारा फॉर्मूला एडिटर है, ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्रिएशन वाला स्क्रीन है। यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है सिंपल फॉर्मूला और एक होता है एडवांस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब हम सिंपल फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, हम हमेशा एडवांस फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
सिंपल फॉर्मूला में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक तो नीचे ये बॉक्स दिख रहा है, जिस बॉक्स के अंदर हमारा जो बेसिकली फॉर्मूला एडिटर हो जाता है, ठीक है। ऊपर हम देख पा रहे हैं हमें एक बटन दिया गया है इंसर्ट फील्ड का, और एक बटन दिया गया है इंसर्ट ऑपरेटर का, ठीक है। साइड में हम देख पा रहे हैं हमें फंक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे। फॉर्मूला लिखने के बाद में अगर हमें ये चेक करना है वेदर दैट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, हम सिंटैक्स चेक, फॉर्मूला का सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं, हम यहाँ चेक सिंटैक्स है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और हेल्प टेक्स्ट यूजुअल होता है जो कि आप हर जगह फाइंड करते हैं, वो मिलता ही है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। ब्लैंक फील्ड हैंडलिंग, अगर फील्ड ब्लैंक रहे, अगर मान लीजिए आप 2 या 3 फील्ड से फॉर्मूला कैलकुलेट करवा रहे हैं और उन 2 या 3 में से एक फील्ड ब्लैंक रह जाती है, तो उस ब्लैंक को आप जीरो की तरह ट्रीट करोगे या ब्लैंक को ब्लैंक की तरह ट्रीट करोगे, ये ब्लैंक फील्ड हैंडलिंग है, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल करिए। अब वापस जाइए एक बारी रिकॉर्ड पे। इस केस में मेरा टोटल सेल्स कंसिडरेशन क्या होना चाहिए या किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। कभी भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट होती है। मान लीजिए एक 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसकी वैल्यू है 1000 रुपए स्क्वायर फीट, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट। सो हाउ एग्जैक्टली आर यू गोना कैलकुलेट? यू विल बेसिकली मल्टीप्लाई 1000 into 500 Yeah. Yes. and 5 lakhs, then in return is going to be your value, right? That's how it works, correct? Yes. All right. So if that is how it works, what are we going to do here? We're basically going to create the same formula. So we have basic sale price and gross super area in contention here. Okay. So let's go to the next tab. चलिए, अब हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट फील्ड का। हमें बेसिकली फील्ड ही तो इंसर्ट करनी है, तो हम क्लिक करेंगे उस बटन पे और हमें बेसिक सेल प्राइस जो है वो फील्ड इंसर्ट करनी है। तो बेस सेल प्राइस दिख रहा है आपको सेकंड डब्बे में, सिलेक्ट कीजिए उसे एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। बहुत बढ़िया। अब ऑपरेटर पे जाइए और एक ऑपरेटर लगाइए। कौन सा ऑपरेटर? मल्टीप्लाई। शाबाश। फिर से जाइए इंसर्ट फील्ड पे। अब हाँ जी, इंसर्ट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। नीचे स्क्रॉल करिए, सिंटैक्स चेक करिए क्या ये करेक्ट है। नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट फिर से क्लिक कीजिए। ऑलराइट एंड सेव। Okay, we're done. We've created our first formula, which is total SC, and we're going to see its value now. So let's go to the record and do a quick refresh. हाँ जी, 50 लाख। क्या ये वैल्यू सही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, क्लियर है? Yes, yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, एक लेवल आगे जाते हैं, एक क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपके टावर के रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हो। तो इसी में टावर वाली पेंसिल पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, न्यू टावर। बहुत बढ़िया। टावर ए कर दीजिए इसे। टावर ए पूरा लिखो भाई। डिस्काउंट दे दो भाई, एक 20% का डिस्काउंट दे दोगे? वाह यार, 5 दो यार, 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, टावर नेम को ही टावर लेवल में कॉपी कर दो। ठीक है, सेव कर दो। सेव कर दो फिर से। 20% का डिस्काउंट क्यों नहीं देंगे वैसे हम?
ऑन अ लाइटर नोट अगर हम बात करें तो नहीं होता वो डिस्काउंट। कपड़े थोड़ी खरीद रहे हैं हम। ठीक है, चलिए जी। सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फॉर्मूला एंड व्हाट आर वी गोना डू हियर? So while creating a formula, we basically want that a discount should be applicable on this formula, on this particular property, right? Now we want to ensure कि भाई हम डिस्काउंट को भी लेकर आ रहे हैं यहाँ पिक्चर में, लेकिन डिस्काउंट तो यहाँ पर है ही नहीं। ओके, वो कहाँ पर है? टावर ऑब्जेक्ट में। टावर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में, करेक्ट। तो हम ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर बेसिकली क्रॉस रेफरेंसिंग एन ऑब्जेक्ट, आर वी? यस। Okay, so if we are cross-referencing an object in order to calculate a formula, what is this called? This is called as cross-reference formula. Clear है? यस। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट ओपन कीजिए। हाँ जी, न्यू पे क्लिक कीजिए, फॉर्मूला। ओके, इसको यू कैन नेम दिस एज डिस्काउंटेड TSC, डिस्काउंटेड TSC. Okay, all right. Now what's going to be the return type here? आप नहीं बताओगे नीतीश, कोई और बोलेगा? परसेंट। करेंसी रहेगा रिटर्न टाइप तो परसेंट, बहुत बढ़िया। और सर करेंसी रहेगा ना सर रिटर्न टाइप तो सर डिस्काउंट के क्या बाद रहेगा? भी। करेंसी। और कोई? तो विशाल ने आंसर दिया, रॉबिन ने दिया मेरे ख्याल है ना, शिल्पा बच रही है। शिल्पा क्या होगा आंसर इसका? तो परसेंटेज। परसेंटेज। हम यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने अभी Value सेल्स हुआ? कंसिडर करेंसी। करेंसी। ठीक है, कोई नहीं, सबके जवाब ठीक थे। बेसिकली क्या इंटरप्रेट किया उस हिसाब से जवाब दिया आपने। सो एवरीवन वाज करेक्ट। ओके, ठीक है, करेंसी सिलेक्ट कर लीजिए नितेश एंड गो टू नेक्स्ट। ऑल राइट नितेश, सो अभी यहाँ एडवांस फॉर्मूला पे हम ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब अगर मेरे को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है ना, यस। अगर मेरे को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट डिस्काउंट? बेसिकली मैं जो मेरा टावर है उसके रेफरेंस, उसका रेफरेंस देखने जा रहा हूँ, है ना? यस। और उसका जो मैं रेफरेंस देखने जा रहा हूँ, उस रेफरेंस को किस पे एप्लीकेबल करूंगा मैं? तो मेरा वैल्यू निकल के आया था। जो मेरा वैल्यू निकल के आया है, बहुत बढ़िया। तो मेरा वैल्यू किस फील्ड में निकल के आ रहा है? टोटल SC करके था ना कुछ। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे ही वर्बली बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो उसमें टोटल वैल्यू मेरी बनी है ना, उस पर 5% डिस्काउंट जो दिया हमने वो निकाल के जो वैल्यू बनेगी वो मेरा एक्चुअल यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू। हाँ, तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो? जो आपने 5% डिस्काउंट जो आपने वहां पर लिखा है, अब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो क्या यहाँ पे कि सो व्हाइल यू कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला, जो आपका वो है टोटल सेल्स कंसिडरेशन का वैल्यू है, वो यस। तो आ गया, उसका 5% निकालेंगे। उसको 5% निकालेंगे। हाँ, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मुलेट करके बताओ अगर इसे तो। एक टोटल सेल्स जो मेरा वैल्यू था हम्म, इनटू 5, जो वो तो टोटल सेल्स 5% वैल्यू था। निकल गया, पर वो तो 5% वैल्यू निकल जाएगी ना। मेरे को तो ओ, डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा ये? जो मेरा 5% वैल्यू निकल के आ जाएगा ना, हाँ, उसको मैं टोटल सेल्स से माइनस कर दूंगा। माइनस कर दोगे तो ऐसे हम भी तो कर स्टार्ट। सकते हैं सर मल्टीप्लाई बाय 95/100 कर देंगे तो सर वैसे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी उसकी। हाँ, तो टावर ए पे 5% है, टावर बी पे 3% है, तब क्या करोगे? तब फिर मल्टीप्लीकेशन चेंज करोगे। सो इट्स ओके, द पॉइंट इज कि फर्स्टली हमें हमेशा ऐसी वैल्यूज देखनी है जो कि डायनेमिकली चले।
हमें हमेशा इस तरीके से सोचना और कैलकुलेट करना चाहिए कि वी आर लुकिंग एट अ डायनेमिक थिंग और अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि हर एक चीज वहां पे चल पाए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला विदाउट एनी फर्दर डिले। तो एक काम कीजिए, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टोटल एससी। टोटल से एससी नीचे है ना सर? हाँ, आप करो स्क्रॉल, हाँ जी, करो इसे सिलेक्ट, इंसर्ट करो। नाउ दिस माइनस व्हाट, जो ये वैल्यू है मेरी, इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? वही बता रहा हूँ, जो वैल्यू है मतलब टोटल से एससी जो वैल्यू है हाँ वो उसका तो आ गई। 5%। अब मेरे को डिस्काउंट पे जाना पड़ेगा ना, यस तो डिस्काउंट के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से टोटल एससी सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, यस, हम्म उसका 5% निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाय अब डिस्काउंट की फील्ड कहाँ पर है, टावर पे है, तो मैं और वापस से टावर में इंसर्ट फील्ड सिलेक्ट करूंगा। अब आप स्क्रॉल करो नीचे, टावर देख रहे हो? यस टावर में दो आ रहे हैं आपके पास में, एक आ रहा है नॉर्मल टावर, एक आ रहा है विद एन एरो। जो यस एरो वाला है ना, यस एरो वाला जो है टावर, वो उसका मतलब होता है टावर के फील्ड्स रेफर करोगे तो जितने भी आपके यहाँ पे, जैसे प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी टाइप का भी आपका एक मास्टर रिलेशनशिप शेयर है, जितने भी रिलेशनशिप वाले जो आपके फील्ड्स बने हुए होते हैं, उसमें आपको वो रेफरेंस करके उनकी फील्ड्स पे ले जाता है। ओके ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबको? जितने भी यहाँ पर इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला वाले बॉक्स में जितने भी आपको एरो वाले दिख रहे हैं, तो ये एरो वाले जितने भी आपने रिलेशनशिप बनाए ना, उनके हैं, ठीक है, इन द सेकेंड बॉक्स। सो प्रॉपर्टी टाइप यू हैव अ रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट। रिकॉर्ड टाइप पता नहीं इन्होंने क्या बनाया, मेरे को देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड टाइप ऐसे बनाना नहीं था। एंड टावर, टावर हैज एन एरो, ठीक है। चलिए आपने डिस्काउंट सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमने बचपन में बॉड मास पढ़ा था, बॉड मास याद है, यस सर। ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन तो बाद में होगा, पहले क्लोज, ओपन करके क्लोज करो, कहाँ करना है? यहीं पे होगा सर। हाँ कर दो, चलो सिंटैक्स चेक कर लो एक बारी। सही है, जैसे बोल रहा है नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है, रिफ्रेश कीजिए। सही है ये वैल्यू, यस तो सही है। सही है। 5% को निकाल लेता हूँ मैं भी कितना आ रहा 50 लाख का 5% हो गया 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख उसमें से है। माइनस हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सबको? एवरी सिंगल पर्सन आउट हियर, इज द अंडरस्टैंडिंग क्लियर? बोलिए। यस चलिए एक और छोटी सी चीज देखते हैं अभी यहाँ पे हम, वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट पे नितिश। हाँ जी, न्यू पे क्लिक करो। अब देखो क्या है, अभी तो हमने दो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करे, ठीक है, फॉर्मूला सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना। चलो कुछ भी लेवल कर दो इसे, कुछ भी जो मन करे, ठीक है, कुछ भी नीचे सिलेक्ट कर दो, कुछ भी ले लो। हाँ जो मन करे वो ले लो और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अभी हमने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखे जो कि हमारा इंसर्ट फील्ड और इंसर्ट ऑपरेटर से चल सकते हैं, ठीक है। So we're good with insert field button and the insert operator button with whatever we've seen so far, which were usually mathematical calculations, okay?
नाउ लेट्स अज्यूम, और अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये कि जो हमें फंक्शंस दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में बॉक्स में, उनका क्या काम है ना? यस सर। उनका ये काम है बेसिकली, हमें सेल्सफोर्स ने फॉर्मूला बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है पहली बात, ठीक है? अगर आपने फॉर्मूला जो आपका टूल है ना उसके ऊपर मास्टरी कर ली, ठीक है, तो आप सेल्सफोर्स मतलब आपका हो गया फिर, ठीक है? कहने की बात ये है, अगर आपने लॉजिक पकड़ के फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करना सीख लिया, okay, so if someone comes to you and says and gives you a logic and you understand the logic and then you are able to formulate, बस हो गया आपका काम। बाकी सब चीजें तो आप यूं ही कर लोगे, बाकी सब तो यूजुअल पॉइंट एंड क्लिक है, ठीक है? अब सेकेंडली, फंक्शंस कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? तो ऑल फंक्शन कैटेगरीज दिख रहा है आपको, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। यस। डेट एंड टाइम के फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस है, मैथ है, टेक्स्ट है और एडवांस्ड है। एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए डेट एंड टाइम में एड मंथ आ रहा है, डेट आ रहा है, डेट टाइम वैल्यू आ रहा है, डेट वैल्यू, ये सारे फंक्शन है, ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके। जैसे कि मान लो मेरे को ना आज की डेट में से कुछ माइनस करवाना है, ठीक है? तो अगर नीचे वो करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक टुडे आएगा और एक नाउ आएगा। नीचे जाओ, एक नाउ आ रहा है और एक टुडे आ रहा है। टाइम नाउ। यस। टाइम नाउ नहीं, नाउ भी आ रहा है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, यस नाउ है। आ रहा है, ठीक है? यस। नाउ सिलेक्ट करो, ठीक है? represents this returns a date and time, ये डेट और टाइम रिप्रेजेंट करता है। और टुडे सिलेक्ट करोगे वो सिर्फ डेट रिटर्न करता है। नीचे करो, ठीक है? तो मान लो आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिस फॉर्मूला में आपको बेसिकली एक डेट में से कुछ माइनस करना है। तो लेट्स से आपके पास एक फ्यूचर डेट है, उस फ्यूचर डेट में से आपको कुछ माइनस करवानी, कोई डेट माइनस करवानी है, तो वो आप ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? दैट माइनस टुडे, ओके? अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वीक डे है, ईयर है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, ठीक है? ऊपर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, टाइम वैल्यू है, टाइम नाउ है, मिनट, मंथ, मिली सेकेंड, सेकेंड, और ऊपर कीजिए स्क्रॉल और करिए, एकदम टॉप पे कर दीजिए, ठीक है? अब ये देख रहे हो डेट टाइम वैल्यू, डेट वैल्यू। तो बेसिकली, और यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, ये बता भी रहा है हमें क्या करेगा ये फंक्शन। करेक्ट। और मेजरली क्या होता है ना, टुडे, नाउ, डेट टाइम, ये सारे यूज होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हम यूसेज में चले जाए ना, तो हम बेसिकली यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है? और हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है? चलिए फंक्शन वाले ड्रॉप डाउन में फिर से क्लिक करिए, अनसेलेक्ट लॉजिकल। अच्छा, अब भाई लॉजिकल कुछ ऐसा है जो कि सबने यूज करा है अपनी लाइफ में, है ना? लॉजिकल तो डिसीजन लेने के लिए भी हम करते हैं, है ना? कि अगर मेरे को रॉयल एनफील्ड लेनी है तो यार मैं ले तो लूंगा, पर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की पड़ेगी और उसका एवरेज कम रहेगा। और उसकी जगह अगर मैं कोई दूसरी एवरेज वाली बाइक ले लेता हूँ, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हो आप? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो आप। तो ये लॉजिकल थिंकिंग का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इफ देख रहे हो, इफ। यस सर। अब देखो लॉजिकल टेस्ट क्या था आपका? बाइक खरीदना। यस। अगर आपने बुलेट ले ली तो क्या वैल्यू होगी? ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू। और अगर आपने बुलेट नहीं ली तो क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ फॉल्स। ओके। आप समझ गए? आपने लॉजिकल टेस्ट किया, ठीक है, कि मेरे को एक एक्सप्रेशन है मेरा कि भाई ये मुझे करना है, और अगर ये मेरा एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है मेरा, अगर वो ट्रू हो गया तो क्या वैल्यू होगी, और अगर वो फॉल्स हुआ तो क्या वैल्यू होगी? जैसे कि क्या एग्जांपल दे दूं? जैसे कि हमने अभी टोटल सेल्स कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, ठीक है?
अब अगर तो डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो क्या वैल्यू होगी, और अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है उसको हम लॉजिकल टेस्ट में रख देंगे। ठीक है, डिस्काउंट मतलब वो पूरा जो लॉजिक है वो पूरा हम लॉजिकल टेस्ट में रख देंगे। उसके बाद अगर ट्रू है तो क्या आएगा और फॉल्स है तो क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड तो हमने सबने देखा है, मैं ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, है ना। When you go into a shopping mall you say यार I'll buy this t-shirt and that t-shirt and that t-shirt, है ना। तो ये हो गया एंड, समझ गए। एंड का क्या मतलब हुआ, ये फील्ड भी वो फील्ड भी वो फील्ड भी। ठीक है, तो लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, और आएगा और का क्या मतलब होता है। तो ये या तो ये। हाँ, ये या तो ये। ठीक है, नॉट का क्या मतलब होता है। मतलब नहीं, ये नहीं, करेक्ट ये नहीं है। हाँ करेक्ट, ये नहीं होना चाहिए भाई, इसके अलावा जो है वो सही है। ठीक है, देखो क्या लिखा है नीचे, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स। यस ठीक है, अब इज ब्लैंक है और इज नल है। ठीक है, इज ब्लैंक एंड इज नल, काम सेम करते हैं, काम दोनों सेम करते हैं। इज नल एक पुराना फंक्शन है जो कि सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होता है। इज ब्लैंक में आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते ले हैं। सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इज नंबर नल वैल्यू ये सब वही है, यूजुअल फंक्शन है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ एक जरूर बहुत ज्यादा खास चीज है इसमें, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, केस पे क्लिक करो। यस हाँ जी, अब देखो केस क्या है बेसिकली, कि मेरा एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के बाद में वैल्यू 1 रिजल्ट 1 वैल्यू 2 रिजल्ट 2, यानी अगर मेरी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी तो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो it is written there as well, checks an expression against a series of values, if the expression compares equals to any value the corresponding result is returned। यानी कि मान लो जो आपने वो टाइप का जो पिक लिस्ट बनाया हुआ है ना, टाइप A B C D जो बनाया ना आपने प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी टाइप पे रहा, तो मान लो कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में चेक करा रहे हो फील्ड वाला टाइप, और अगर फील्ड वाले टाइप की वैल्यू अगर ए रहेगी तो आपका रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो आ जाएगा रिजल्ट 1 में। अगर वैल्यू बी रहेगी तो रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट 2 में। सी रहेगी तो वैसा, और अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स रिजल्ट में जो भी एल्स रिजल्ट रहेगा वो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो दोबारा पूछ सकता है यहाँ पे। नहीं है, नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे जब। अच्छा ठीक है, चलो फंक्शन सिलेक्ट करो दोबारा से। मैथ तो यार देखो सिंपल फंक्शन है, कुछ खास नहीं है। एब्स वेब्स एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ए कॉस ए सिन ये सब कुछ है ना, है ना। अब इसमें देखो सीलिंग बता देता हूँ क्या होता है। सीलिंग पे क्लिक करो, सीलिंग क्या होता है, राउंड अप कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है सीलिंग, है ना। अगर किसी ने कभी एक्सेल यूज करा हो तो सीलिंग यूज करा होगा, तो सीलिंग बेसिकली राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल करो नीचे, कॉस साइन वाले फंक्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस वगैरह मिल जाएगा, फ्लोर जियो लोकेशन ये सब मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल के लिए EXP मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रेस कर देगा पावर, एक्सपोनेंशियल क्या करता है, पावर रेस कर देता है। ठीक है, और स्क्रॉल करो नीचे, लॉग है, मैक्स है, मैक्स में ना आप समझ ही रहे हो, एवरेज वाली चीज हो गई, है ना। और करो नीचे स्क्रॉल, मॉड भी है, मॉड्यूलस पड़ा होगा। और जाओ नीचे, यस सर, ओके। पाई पाई है, राउंड पता ही है सबको, है ना। स्क्वायर रूट भी है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, टैन आ गया, टैन। ठीक है, और ट्रंकेट पे खत्म है। ठीक है, अगर किसी को ट्रंकेट, अगर किसी नंबर को ट्रंकेट करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंकेट करने का क्या मतलब हुआ, हम बेसिकली उसे, जो नंबर है मान लीजिए हमारा 10,000 है, हमें उसको ट्रंकेट करना है 3 वैल्यू तक, तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 हम हटा देंगे। ठीक है,
फंक्शन पे दोबारा क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन पे, टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट वेक्स्ट तो यूज नॉर्मल से हैं। टेक्स्ट बेसिकली क्या यूज करते हैं, बिगिंस की, किससे बिगिन हो रहा है, बी आर जो है वो ब्रेक के लिए होगा, देखो। हाँ, ब्रेक, HTML टैग ब्रेक के लिए है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, CHR कैरेक्टर के लिए होता है, कितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा सा, CHR इज फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ, इस पिक वैल पे रुक जाओ, ऊपर जाओ थोड़ा सा, इस पिक वैल क्यों जरूरी है और क्यों मैंने इस पे रुकवाया, इसलिए रुकवाया क्योंकि कई बार हम बहुत सारी पिक लिस्ट फील्ड्स बनाएंगे सिस्टम में, जैसे नीतीश ने एक बनाई भी हुई है प्रॉपर्टी टाइप के ऊपर ABCD, ठीक है। तो पिक लिस्ट फील्ड जब भी अभी हम यूज करते हैं फॉर्मूला में, तो हमें इस पिक वैल वाला फंक्शन यूज करना होता है, ठीक है। चलो ठीक है, एल पैड आर पैड है जो कि पैडिंग के लिए यूज होता है लेफ्ट या राइट में, ठीक है। लेफ्ट और राइट भी होगा फंक्शन, राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन बेसिकली यूज होते हैं कि कैरेक्टर्स वगैरह हटाने के लिए या पकड़ने के लिए पीछे से या आगे से, ठीक है। ठीक है, ट्रिम ट्रिम कर देगा, आपको पता है ट्रिम क्या करता है, ठीक है। चलो फंक्शन पे दोबारा क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे, फाइनली एडवांस्ड पे चलते हैं। एडवांस सिर्फ करेंसी रेट है, इसको छोड़ दो, अभी इतनी इनिशियल लेवल पे आपको ये यूज होगा भी नहीं, ठीक है। चलो एनी क्वेश्चंस एनीवन, बिकॉज मैं थोड़ा एक एक असाइनमेंट दूंगा, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है इसके ऊपर, और वो इफ वाले फॉर्मूला से यूज होगा वो, इसीलिए मैंने इफ इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली समझा भी दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो वाला असाइनमेंट में वो वाला इफ वाला फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी के ऊपर ही बनेगा वो, और जो हम ऑलरेडी फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर चुके हैं उनके ऊपर ही बनेगा, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रिएट दैट फॉर्मूला। बट ये है लॉजिक बिठाना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बिठा के हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर दो फटाफट। अब बताओ किसी के पास कोई क्वेश्चन है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन, बताइए सर। जैसे कि हम उसमें चले गए, मान लीजिए जो क्लासिक वर्जन में, ठीक है। हाँ। अभी जो हमने जितने ऑब्जेक्ट बनाए थे वो हमने रियल एस्टेट के अंदर बनाए थे ना, हम्म। तो मतलब वो क्या बाकी में विजिबल होंगे? क्योंकि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जब क्लासिक वाले में तो भी मुझे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे तो मतलब ये जो हमने बनाया टावर प्रॉपर्टी टाइप, ये यहाँ पे भी आ रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, टैब्स के यहाँ पे, जब यहाँ आप पे भी विजिबल होंगे। ऑब्जेक्ट जब बना रहे थे, जब आप, हम्म। तो आप कैसे बना रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ मेरे को। क्रिएट, लाइक मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, बुकिंग लिख दो, बुकिंग, B कैपिटल कर दो। ओके, उसको मैंने सेम नेम दिया यहाँ पे। हम्म, ऑब्जेक्ट नेम मैंने ये रखा था, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे यही था, ओपन विद स्टैंडर्ड। एंड यहाँ पे सेम डेटा टाइप, यहाँ पे अलाउ रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट एक्टिविटीज इन ट्रैक, then develop and allow search, and then save, and this one also. सेव करो। ये तो बन गया ऑब्जेक्ट, अब इसका टैब बनाओ, होम पे क्लिक करो। Yes. टैब स्टाइल तो दो। हम्म, यहाँ पे ये रखा था बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको बस यहाँ पे हम्म, नेक्स्ट किया था, हम्म। और देन यहाँ पे सेव। हाँ रुक जाओ, सेव मत करना, स्क्रॉल ओके, करो अलाउ, ऊपर, या ऊपर ओके, स्क्रॉल करो। ये क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। ओके, इंक्लूड ऑल टैप कर दिया था मैंने, ओके, गॉट इट, ठीक है। ओके। दूसरा इसमें सर ये था, लाइक
यहाँ पे जो हमने वो अपना पूरा मतलब एक ऐप बनाया था ना रियल एस्टेट का, हाँ जैसे जैसे वो यहाँ पे हम गेट करते हैं, यहाँ पे एप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं रियल एस्टेट, तो वो मुझे शो हम्म हो जाता है, ठीक है। हम्म यहाँ पे तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे यहाँ पे जब मैं गया था ना समय, हम्म यहाँ पे नहीं हो रहा था। ऐप लॉन्चर में गया था मैं, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा था मुझे, ये यही दिखते हैं बस। अच्छा, तो यहाँ पे करोगे क्या ये करके? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं, और वैसे ही जनरल पर्पस। रियल एस्टेट लाइटनिंग में बना है ना आपका ऐप? ओके, तो जहाँ पे क्रिएट करेंगे वहीं पे दिखेगा ऐसा। नहीं, रियल एस्टेट जो है वो रियल एस्टेट हम्म, लाइटनिंग वाला ऐप है ना, जाके चेक करो। अब जाओ वापस रियल एस्टेट पे, ऐप पे जाओ, ऐप पे सेटअप पे जाओ। ओके। क्विक फाइंड में एप्स डालो, ऐप मैनेजर, ठीक है, सर्च करो आपका रियल एस्टेट। ओके, यहाँ पे ऐप टाइप लाइटिंग दिखा रहा है, हम्म इसलिए नहीं शो। ओके, ठीक है सर, ओके। ठीक है, हो गया। चलो तो यस। फिर एक काम करो, प्रॉपर्टी टाइप वाला ऑब्जेक्ट खोल लो एक बारी। इसमें 2 BHK बनाया हुआ है, मतलब वहां से खोलूंगा ऑब्जेक्ट मैनेजर से। प्रॉपर्टी ओपन करो, प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट ओपन करो, प्रॉपर्टी टाइप नहीं। हाँ, क्लिक कर लो, सिलेक्ट करो इसे। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बार बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, 5 मिनट का। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम है भी नहीं, वैसे टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, बट फिर भी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ मैं, वेरी क्विकली। तो देखो क्या होता है कि कोई भी डेटा है सिस्टम में, ठीक है। तो अब वो जो डेटा है जो सिस्टम में, उसको मान लो देर आर 1000 records. Okay. Now, if there are 1000 records in the system, there has to be a way to bifurcate those records in groups. है ना? यस। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई अगर मेरे 1000 रिकॉर्ड है, तो मेरे पास में कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं उसको छोटे छोटे बैचेस में या छोटे छोटे ग्रुप्स में बाइफरकेट करके एक आइडिया लगा सकूं अपने दिमाग में कि हाँ यार, ये 100 है, ये 100 है, ये 100, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा ना, मेरे लिए इजियर हो जाएगा डेटा को पुट अप करना, है ना, और फिर डेटा को समझना, मेरे लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। लाइक स्कूल में बच्चे होते हैं काफी सारे, फिर को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फिर सेक्शंस में डिवाइड। हाँ, मैं देता हूँ एक एग्जांपल। इसको हम एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई मेरा ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी देखो, रियल एस्टेट में या किसी भी बिजनेस में या किसी भी सेल्स वाले बिजनेस में इन जनरल, जो भी सेलिंग होती है, एक तो वो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग क्या हो गई, कस्टमर आया और कस्टमर को बेच दिया। इनडायरेक्ट क्या होती है, ब्रोकर आया, ब्रोकर ने पहले बात करी और फिर ब्रोकर ने कस्टमर को बिकवाया। तो दो टाइप की सेलिंग हो गई, एक होगी डायरेक्ट, एक होगी इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जो कस्टमर वाला ऑब्जेक्ट है या कस्टमर वाला जो रिकॉर्ड है, वो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑब्जेक्ट पे सेव करता हूँ। यस। ठीक है, अब अगर तो मैं ये बाइफरकेशन देता हूँ बिटवीन ब्रोकर एंड अ कस्टमर, तो जो मेरे सेल्स वाले बंदे हैं या जो मेरे कॉल सेंटर वाले बंदे हैं, उनको पता रहेगा कि यार ये ब्रोकर है, इसे फोन नहीं करना, ये कस्टमर है, इसे फोन करके फॉलो अप करना है अपने को, इससे पूछना है कि भाई आप कब तक ले रहे हो ये मेरा प्रोडक्ट, है ना। यस। लेकिन वो तब जब अगर बाइफरकेशन रहा, तो अगर बाइफरकेशन नहीं डालेंगे सिस्टम में, तो
वो कैसे चेक, वो व्यक्ति कैसे चेक करेगा, वो कॉल सेंटर वाले या वो सेल्स वाले कैसे, हाउ वुड दे आइडेंटिफाई एज टू whether they need to call that guy or not, right? They might call a broker and ask कि सर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट में, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो बिकवा रहा हूँ खुद ही, है ना। तो एक आइडेंटिफिकेशन, एक प्रॉपर बाइफरकेशन देने के लिए रिकॉर्ड टाइप करके एक एंटिटी होती है सिस्टम में, जो कि हम यूज करते हैं, जिसे यूज करके हम बेसिकली बाइफरकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो जाओ फील्ड एंड रिलेशनशिप पे, आपने रिकॉर्ड टाइप क्या बनाया है वो दिखाओ मेरे को, क्या है ये रिकॉर्ड टाइप बनाया था। सिलेक्ट करो इसे, क्या बना दिया है। चलो रिकॉर्ड टाइप पे चलो। एडिट करो उसको, एडिट करना है इसको। नहीं इट्स ओके, रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट करो नीचे, हाँ यस सिलेक्ट दिस, परफेक्ट, ओके नाउ। अच्छा आपने रिकॉर्ड टाइप ही बनाया है, इसको डिलीट कर दो नितिश। क्यों बोल रहे हो ना? हेलो, इनएक्टिव रिकॉर्ड टाइप डिलीट हो सकते हैं, ठीक है कोई नहीं, इसे कैंसिल कर दो, फिर जाऊँ वहीं पे। इसे कैंसिल कर दो कि वहीं पहुंच जाओगे। कोई नहीं, चलो अब चले जाओ, ओपन कर लो वापस से। सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप्स, क्लिक ऑन न्यू। अब क्योंकि मेरा बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी किस किस तरीके की हो सकती है मेरी, अपार्टमेंट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, फ्लैट, सॉरी फ्लैट तो वही, क्या अपार्टमेंट हो सकता है, सिंगलेक्स हो सकता है, ड्यूप्लेक्स हो सकता है, विला हो सकता है। तो रिकॉर्ड टाइप लेबल में आप इनपुट करो वैल्यू अपार्टमेंट, ठीक है, एक्टिव कर दो इसे, मेक अवेलेबल कर दो सारी प्रोफाइल्स के लिए, नीचे स्क्रॉल करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो, नेक्स्ट सेव कर दो सॉरी। ठीक है ये हो गया, वापस से रिकॉर्ड टाइप्स पे चलो। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड टाइप वाला है, इसको इसको एडिट करना है जरा, डीएक्टिवेट करो, सेव कर दो। अच्छा ये डिफॉल्ट लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने, चलो कोई नहीं, रहने दो, पड़े रहने दो, कैंसिल कर दो इसे। चलो वापस से रिकॉर्ड टाइप्स पे जाओ, क्लिक ऑन न्यू अगेन, एक रिकॉर्ड टाइप और बना दो, नेम इट एज विला, ठीक है, एंड क्लिक ऑन एक्टिव, मेक अवेलेबल, नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन एंड सेव। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप का डिफॉल्ट जो अभी आ रहा है ना आपका, वो कैसे हटाना है वो लिख कर रखना नितिश, मेरे को पूछना जब मैं प्रोफाइल बताऊंगा ना, जब मैं प्रोफाइल पढ़ाऊंगा तब पूछना मेरे को, ठीक है। ठीक है, वी डन विद दिस, लेट्स गो बैक टू द एडजेसेंट विंडो एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टी, और न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे, बस यहीं रुक जाएंगे। क्लैरिटी मिली, क्यों बनाया रिकॉर्ड टाइप हमने, यस सर।
शिल्पा क्लियर है? आप कल ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। ये रिकॉर्ड टाइप बनाने का कैसा वो पूछ रही थी मैं। हाँ आई थिंक सो मैंने भी ऐसे रिकॉर्ड टाइप बनाया है जैसे अच्छा, मैंने- कोई बात नहीं। So you now have an understanding as to why exactly we're creating this, right? Yeah. ठीक है। In order to give a proper bifurcation, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, अपार्टमेंट सिलेक्ट करो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। चलो वैल्यूज डालो फटाफट। अनसेव। अभी देखो, आप देखोगे, देख क्यों नहीं पा रहे हो आप? पर क्या? रिकॉर्ड टाइप आ नहीं रहा ना। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। चलो पेज लेआउट पे जाके चेक करना, रिकॉर्ड टाइप लगाना, ठीक है। पेज लेआउट पे जाओ। पेज लेआउट्स, थर्ड फ्रॉम द टॉप, या ओपन दिस। यस, रिकॉर्ड टाइप लगा दो, सबसे ऊपर ही लगा देना। खींचो इसे, खींचो। नीचे नीचे ले लाओ। आओ। हाँ लाओ। हाँ सबसे ऊपर लगा दो। इसके नीचे यहीं पे। लगाओ थोड़ा सा, इससे नीचे नहीं मेरे भाई, ऊपर जाओ थोड़ा सा, ऊपर जाओ थोड़ा और। स्क्रॉल नहीं हो रहा सर ये। यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। अब रिकॉर्ड टाइप को लेके प्रॉपर्टी नेम के ऊपर लगाओ। प्रॉपर्टी नेम के ऊपर हो। हाँ, छोड़ दो, सेव कर दो इसे, सेव कर दो। चलो बहुत बढ़िया, रिफ्रेश करो फटाफट। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं चाहूँ इसे चेंज भी कर सकता हूँ, वहां पे क्लिक करोगे। हाँ यहाँ हाँ, तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब कैंसिल कर दो इसे। अब आप लोग कल एक फॉर्मूला बना के लाओगे और एक रिकॉर्ड टाइप बना के लाओगे। रोल ऑफ समरी बताना था लेकिन समय ही नहीं होता इतना, तो कैसे बताएं। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग लेकर आएंगे और बाकी फिर हम कल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप शेयर करेंगे ना डिटेल्स, क्या फॉर्मूला बनाना है? हाँ हाँ हाँ, मैं वो करूंगा ना, ओके। मैं आपको भेजता हूँ ना, उस पर टेंशन नहीं। ठीक है, सो आई विल शेयर दिस ऑन द सेम, वही जो हमारा वो है ग्रुप व्हाट्सएप वाला। ठीक है जी। सो बढ़िया, ऑल क्लियर। कुछ डाउट यस। है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, तो फिर हम आगे बढ़े। एवरीवन। यस। ठीक है, बढ़िया, फिर चलते हैं एंड कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके देन।